प्रोग्रेस का एक मिराज होता है. अ लॉट ऑफ पीपल will relate to this when I'll say just because you go to some class, just because you do some course, it doesn't mean कि you are progressing. मेंटरशिप ना जब लाइफ सही चल रही होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. इट्स द प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट डेज ऑफ योर यूपीएससी जर्नी. जब आप सब कुछ फाइट मार रहे हो, सब पढ़ के जा रहे हो, फिर भी आपने एनसीईआरटी कर ली, फिर भी आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो भाई गलती हो कहाँ रही है? सिटिंग विद समवन हु हैज गॉन थ्रू द सेम जर्नी एज यू आर गोइंग is 10 times more valuable than sitting in a classroom. Look at this. After 1 year, over 8 out of 10 students still attempt the test, still sit with the mentor after 1 year. ऐसा कभी नहीं होता है क्लासरूम में. After 2-3 months, people stop attending classes. They don't even give tests, etc. हर एक स्टेज को निकालने की एक रिक्वायरमेंट है. प्रीलिम्स को निकालने की अलग रिक्वायरमेंट है, मेंस को निकालने की अलग रिक्वायरमेंट है और इंटरव्यू को पास करने की अलग रिक्वायरमेंट. स्टूडेंट्स ने इन बुक्स को, इन फाउंडेशन कोर्स को, इनसे बने हुए नोट्स को ही अपना एंड बना लिया है. And that is why you are stuck in the trap. Whenever you do something, not just in this exam but anything, minimize the mistakes, minimize the faults, find those faults, minimize them, and then keep course correcting towards a better outcome. If you still have a plan कि मेरे को दिन में 8 घंटे पढ़ना है, how do you divide that plan? How do you break down a whole book or a subject? Let's say लक्ष्मीकांत को कैसे break down करना है topic wise. वो सब examples के साथ we'll show you. What is the undeniable truth about civil service exam, right? And that is when it comes to UPSC, there is no single right answer here. It's not like a prelims का MCQ. So this is happening with you guys. You guys are working very hard, but syllabus, books और इसी सब में खप जा रहे हो आप. उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे. You're not able to understand. You have to develop certain skills. So let's understand कि अगर तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो this is the overall 1.5 years of स्ट्रेटजी एंड सिलेबस कवरेज प्लान. ठीक है, जिसमें रिवीजन भी है साथ साथ. आपके पूरे 1.5 साल को हमने 4 फेज में डिवाइड किया. पहला तो बेसिक फेज, दूसरा मेंस फेज, ठीक है, तीसरा प्रीलिम्स फेज और चौथा अगेन मेंस फेज, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आता है. मेंस को 2 बार हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेंस के नंबर ही काउंट होते हैं. आपको 800 नंबर से ऊपर लाना. अल्टीमेटली योर मेंस मार्क्स इज गोइंग टू be counted. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. Today, the session is mostly focused on 2026. For those who are attempting for the first time, if you are a beginner, this is relevant for you. And if you are a working professional, if you have attempted before, but somehow like you are not able to manage time or you didn't have a clear plan, this session आपके लिए भी है. We will talk about, Arvind sir will talk about the whole strategy, including prelims. What are the most important topics in prelims? Famously known as micro themes. What are the most important topics in major core 4 subjects, जो static subjects होते हैं, polity, economy, and other history, geography, right? And then we'll also show you what is the value of having a perfect timetable, and what is the value if you still have a plan कि मेरे को दिन में 8 घंटे पढ़ना है. How do you divide that plan? How do you break down a whole book or a subject? Let's say लक्ष्मीकांत को कैसे break down करना है topic wise. वो सब examples के साथ we'll show you. All I expect from you guys is to have complete attention here. So turn up your camera and just have your notebook here, right? And if you have any doubt, please feel free to write. Just give me. Yes, we will answer all your queries. Just keep writing. We'll start with what is the undeniable truth about civil service exam, right? And that is when it comes to UPSC, there is no single right answer here. It's not like a prelims ka MCQ. There's no binary answer here. That's why following a ranker's strategy strictly without accommodating your own habits, constraint, your own problems, your own way of preparation or your own way of learning things, they completely fall flat. They don't work. You can start replicating the exact same strategy of a rank 1, rank 2. It won't work out for you. It has never worked out for you. Same was for them. They also tried multiple strategy, but it didn't work out. They have to figure out their own way of preparation, right? It happens because you will miss a lot of things. There are a lot of things, lot of variables to a success that you will not understand. All you see is what they have done. You don't see the things that they choose not to do, etc. You will miss those things. Those are hidden things that you'll miss, right? Because there are other variables to success in this exam. There are things that are out of your control, right? So you need to figure out your own way of preparation. You need to make sure you figure out your own path. Whenever you do something, not just in this exam, but anything, minimize the mistakes, minimize the faults, find those faults, minimize them, and then keep course correcting towards a better outcome, etc. This is what they have done.
there's no formula to this. It's as simple as what are the faults that I make. I keep minimizing them and I keep course correcting my preparation towards a better outcome, which is the rank in this exam or list in the name, right? So, and this is what a classroom program or anything, they don't understand. This is where classrooms completely fail, right? There is no good reason today to sit in a classroom for 6 hours and then expect something else, right? You need to sit with someone. Sitting with someone who has gone through the same journey as you are going is 10 times more valuable than sitting in a classroom. And it's sad that most of the aspirants don't think like that by default. This is the first thing they should be thinking, that I come with some of my own personal weaknesses, right? A person wrote in the chat right now that I'm indisciplined. आप उसको अगर उनको क्लासरूम में बिठाओगे, ही a teacher will come teach you and then उसको आपके डिसिप्लिन से कुछ लेना देना नहीं है. These things has to be understood one-on-one level, right? अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि this person has all the intent, all the discipline, sorry, all the intent to qualify the exam, but somehow they're fixed in a loop or a habit जहाँ से वो वापस नहीं आ पा रहे या बाहर नहीं आ पा रहे, right? No one understands. So please understand, do not follow a ranker's strategy like down to its core without understanding your own uniqueness about the preparation. Don't do that, right? We at CD, we believes in real mentorship, like with real outcomes, right? What happens? Like I said, find your faults, course correct, right? Find that one person in your, आपके कोई senior हो सकते हैं, आपके कोई घर में अगर कोई ऑफिसर है या किसी ने क्वालिफाई किया वो हो सकते हैं, उनके पास जाके you need to sit down and show everything that you're doing. It could be notes, it could be your answers, it could be anything. If you don't have, then find some mentor somewhere, right? But ask these questions before you find that mentor. सिर्फ ये नहीं कि मेरे को पॉलिटी में डाउट हो रहा है, आंसर मी दैट, मेरे को ये नहीं आ रहा है समझ में, डोंट डू दैट. That's not, doubt solving is not where it is, or just getting a call is not. I need to make sure, let's say one person, let's say Vanshika was here, she needs to understand, sit with me, and I need to tell her this is exactly where you are making a mistake, and then help her course correct it, right? Second is ruthless prioritization. आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, no chance, you can't do that. You need to make sure you start, you're a beginner, आप अभी best position में हो to do these things, ठीक है? First thing you need to do is that check prelims in mains paper, let's say last 10 years ka. What are the most recurring topics that have been asked again and again? We call them micro themes. अगर आपसे नहीं हो रहा है, we have made them available for free. We will share the link at the end of the webinar. Sub micro themes identified है. Arvind sir will take a lot of examples for prelims micro themes and mains micro themes. Focus on them. Make a notes. Take a screenshot कि ये topic तो मुझे छोड़ना ही नहीं है. इतना रूथलेसली प्रायोरिटाइज करके चलो आप अपनी प्रिपरेशन की, जो कोई गलत नहीं करता है वो मैं भी गलत नहीं कर, जो कोई रैंकर, ये सब चीजें कोई रैंकर गलत नहीं करेगा. देयर इज अ रीजन व्हाई दे डोंट गेट इनटू द कंटेंट लूप. यार बाहर ऑलरेडी बहुत नॉइज है, वी डोंट वांट टू ऐड इनटू दैट नॉइज, राइट? द पॉइंट इज आपकी प्रिपरेशन मिनिमाइज्ड होनी चाहिए, बिल्कुल एलिमिनेशन पे होनी चाहिए कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट? प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए डेली बेसिस पे कि यही पढ़ना है, क्यों पढ़ना है उसका भी रीजन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. माइक्रो थीम से यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे. टेसिट नॉलेज ऑफ रैंकर्स. आप ऐसी, व्हाई इज इट दैट सम रैंकर्स मेक वन पेजर नोट्स? व्हाई इज इट दैट अनिमेश फोकस्ड मोर ऑन मेंस देन प्रीलिम्स? व्हाई इज इट दैट श्री लक्ष्मी विल मेक वन पेजर नोट्स? एंड व्हाई इज इट दैट a lot of people will make sure that their optional preparation have edge over others? There are a lot of things that rankers do and it comes very obvious to them, but बाकी aspirants को वो चीजें obvious नहीं लगती है. हर रैंकर का आप अगर प्लान भी देखोगे ना, तो दे विल हैव अ रिवीजन का स्लॉट एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द 15 days. ये सब चीजें आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, पर रैंकर के लिए वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस चीज है. दे डू इट बिकॉज दे डोंट इवन नो, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन. So a lot of things, if you will just directly follow from ranker, you will miss these things. This is their implicit knowledge. This is something they also don't know that they are doing. It is right. It helps them, but you need to understand the reason behind them, right? At CD, we believe maximum 2 attempt. आपको भी अब यही करना है. Do not get into the cycle of 5-6 year preparation. मत करो. It will not help you. Those who are a working professional, do not think about quitting your job. I'm telling this in the beginning because there are a lot of questions that people ask, right? Don't do that, right? Make sure that whatever you do, you divide your preparation in phases. It can happen that you don't know right now. We will give you the phases today. Don't worry about. You will know exactly by what month I need to end. We'll give it to you today. Faster ramp up.
It's the same thing that a veteran person will cover in 2 months, a beginner covers in 6 months. It is a reality. A lot of people here will struggle in turning NCRTs, etc. They don't even know how do I remember this, how do I make notes. If the question comes from this topic in exam, am I equipped with enough skill to solve that question? PYQ में क्या आया था मुझे पता ही नहीं है अभी तक. मैं सिलेबस करूं या पहले आंसर लिखूं. सिलेबस कर लिया है पर आंसर का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है. ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड if you don't have those answers today, but you will have those answers today, right? What I mean by faster ramp up is आप ये 5 साल का प्लान नहीं बना सकते, नहीं करना है आपको ये. 2 years, 2 attempts, that's it. Get out of the UPSC after that. मत करो भाई. मतलब अगर आप करना भी है ना, तो make sure that you are attempting the third time only to improve rank, right? Not to just get into. अब 3 अटेम्प्ट के बाद आपसे प्रीलिम्स भी फिगर आउट नहीं हो रहे, 3 अटेम्प्ट के बाद आपसे मेंस भी फिगर आउट नहीं हो रहे. स्टिल लॉट ऑफ पीपल विल आस्क इन यूट्यूब कमेंट्स यहाँ पे कि सर मेंस का कैसे प्रिपेयर करना है. ये दिस इज अ बैड सिचुएशन टू बी इन. आप एक बहुत ही मैच्योर स्टेज पे प्रिपेयर कर रहे हो. आप स्कूल कॉलेज में थोड़ी हो अभी. यू शुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन ओनली, राइट? तो इस स्टेज पे हमें नहीं जाने कि हम 1-2 अटेम्प्ट के बाद भी अभी मेंस ही फिगर आउट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या करना है. तो वो सब नहीं करना है. जब भी कोई टेस्ट देना है तुरंत फीडबैक लेना है. माइलस्टोन में प्रिपरेशन को डिवाइड करो. प्रोग्रेस का एक मिराज होता है. अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस व्हेन आई विल से जस्ट बिकॉज यू गो टू सम क्लास, जस्ट बिकॉज यू डू सम कोर्स, इट डजंट मीन कि यू आर प्रोग्रेसिंग. ऐसा थोड़ी है यहाँ से मैं रोज कहीं जा रहा हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आई एम प्रोग्रेसिंग इन दैट थिंग, राइट? सो प्रोग्रेस का एक मिराज होता है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैंने 6 महीने क्लास कर ली है. इट डजंट मीन. what actually matters is आपको रियल आउटकम आ रहे हैं कि नहीं. रियल आउटकम विल लुक लाइक टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, मेरे से आंसर बेटर हो रहे हैं कि नहीं, am I able to at least complete the paper or not, right? These are real outcome, and the actual real outcome would be कि आपकी why are you preparing to get the rank, right? So that's the actual real outcome. So make sure whenever you get into anything, कोर्स हो, मेंटरशिप हो, ये क्वेश्चन जब तक आंसर नहीं है नहीं करना है आपको. डोंट गेट इनटू, फाइंड समवन एल्स, ठीक है? बट ये 3-4 चीजें आपको हमेशा अपने साथ ध्यान में रख. जज एनीथिंग बेस्ड ऑन दोस. बिफोर अरविंद सर स्टार्ट, आई वांट टू गिव यू सम रियल प्रूफ. दिस इज हाउ वी टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? दीज आर एक्चुअल स्टूडेंट्स टारगेट गिवन. पीटीडी मतलब होता है पोस्ट टेस्ट डिस्कशन. टारगेट असाइन हुआ है, कितने दिन किस बजे कॉल गया है, उसने क्या कंप्लीट किया है बच्चे ने, कितना माइलस्टोन कवर कर लिया. प्रीलिम्स पॉलिटी मतलब 1, मतलब प्रीलिम्स का पॉलिटी का टेस्ट 1 उसने दे दिया है. दीज आर रियल स्टूडेंट्स टॉकिंग टू रियल मेंटर्स. आफ्टर दैट एवरीथिंग इज लॉग्ड. तो हमको एक प्रोग्रेस पूरी कैप्चर्ड होती है बच्चे की, राइट? लुक एट दिस. आफ्टर 1 year, ओवर 8 out of 10 स्टूडेंट स्टिल attempt the test, still sit with the mentor after 1 year. ऐसा कभी नहीं होता है क्लासरूम में. आफ्टर 2-3 months पीपल स्टॉप गोइंग टू स्टॉप अटेंडिंग क्लासेस, दे डोंट इवन गिव टेस्ट एक्सेट्रा. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू द जर्नी, अ रियल मेंटर, राइट? लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉल. ऐसा नहीं है कि बेटा आओ और कैसा चल रहा है, अरे तुमसे हो जाएगा. जो एक क्रूअल ऑप्टिमिज्म होता है ना, जब मुझे पता है, आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम रैंडमली, बस मुझे अगर पता है कि पीयूष यार तेरे से ये 4 गलतियां हो रही है, आई नीड टू बी ऑनेस्ट विथ हिम. आई नीड टू टेल हिम कि यार देख, लाइक वी नीड टू सिट डाउन एंड हर कन्वर्सेशन का एक ही आंसर नहीं हो सकता कि तुमसे हो जाएगा. वो क्रूअल ऑप्टिमिज्म, फेक ऑप्टिमिज्म, कोई मोटिवेशन को सुन लिया, वो उससे कुछ नहीं होता. आई नीड टू टेल पीयूष कि देख ये गलती हो रही है, एंड अगर नहीं सुधरेगी ना तो फिर प्रॉब्लम है भाई. लाइक भूल जाओ, फिर रैंक वैंक या कुछ आने वाला है. वी नीड टू सिट डाउन राइट नाउ बिकॉज आई हैव द सॉल्यूशन. लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस मेंटर गोस थ्रू. कि डाउट सेशन हुआ था, कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चली थी तो थेरेपी कॉल हुआ था, कि टारगेट असाइन किया था इस कॉल पे, कि सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वो किया है. पोस्ट टेस्ट डिस्कशन किया है मैंने. मेंस का बच्चे ने टेस्ट दिया था, उसका मैंने डिस्कशन किया है. प्रीलिम्स का मैंने, उसने पेपर दिया था, मैंने उसका डिस्कशन किया है. समाचार मंथन, करंट अफेयर्स का उसने कुछ टेस्ट दिया था या उसको समझ में नहीं आया था तो मैंने उसका डिस्कशन किया है. ईच काइंड ऑफ कन्वर्सेशन नीड्स टू मेक श्योर कि बच्चा उस प्रॉब्लम से निकल जाए. हर कन्वर्सेशन के बाद पूरे साल. दिस इज व्हाट द रियल, these are the things that worked for a lot of rankers here, right? So look at Anindya Vishwas is one of our students, right? Look at what a mentor has written. Scored 172 in the test. Look at the feedback. ये mentor ने feedback दिया है after the call. She has good command over the subject, also clarified some doubts. She also wants to start environment. So I've sent her some chapters and etc. everything, right?
एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आई नो एग्जैक्टली कि अनन्या विश्वास की अभी जर्नी में वो कहाँ पे है, कहाँ गलती कर रही है, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। डू यू रियली थिंक दिस इज पॉसिबल इन 600 लोग बैठे हैं क्लासरूम में? वो सबसे कुछ नहीं होना है, वो प्रोग्रेस का मिराज है। आप लोग प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। मेक श्योर कि यू आर वेरी शार्प अबाउट जजिंग व्हाट यू आर डूइंग। ये 2 साल फिर आने वाले नहीं है। अनदर थिंग, द टेस्ट वाज गुड एंड ही हैड मार्क्ड मेनी क्वेश्चंस एज करेक्ट बेस्ड ऑन द डिडक्शन। सो बच्चे को अभी डिडक्शन समझ में आने लगा है। ही इज एबल टू नैरो डाउन द ऑप्शंस इन द प्रीलिम्स पेपर व्हिच ही वाज नॉट एबल टू डू। महेश्वर रेड्डी, Maheshwar Reddy, a mentor, has written the comment after the call, जो पहले नहीं हो रहा था. So now he is improving, right? He has started modern history and he has, I've asked him to complete 1857 से लेकर 1900 in a week. एक वीक में कंप्लीट करके इसको फिर से कॉल जाने वाला है कि महेश्वर, where are you? Let's give a test. These are the small intervention that works, right? The last thing that I want to say before I hand it over to the actual academic side of preparation, Arvind sir will take up. मेंटरशिप ना जब लाइफ सही चल रही होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इट्स द प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट डेज ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। जब आप सब कुछ फाइट मार रहे हो, सब पढ़ के जा रहे हो, फिर भी आपने एनसीईआरटी कर ली, फिर भी आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो भाई गलती हो कहाँ रही है? क्योंकि बाजू वाले के तो नंबर आ रहे हैं, या मैं 4 साल से दिए जा रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? उस दिन वैल्यू होती है मेंटरशिप की। एंड आई वी कीप गिविंग एग्जांपल ऑफ अनिमेश, राइट? ही वाज स्ट्रगलिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई ही रियलाइज। Adit Pandey, Pawan Datta, I can just keep going on. These are the products of our mentorship programs, right? तो ये प्रिपरेशन एक वर्स्ट डे की है। अच्छे दिन चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो कोई इशू, इसकी वैल्यू ज्यादा होती नहीं है, राइट? इट्स लाइक एन इंश्योरेंस फॉर द वर्स्ट डे, कि कोई रहेगा जो इस जर्नी से निकल चुका है एंड ही विल मेक श्योर कि मैं बिल्कुल रॉक बॉटम पे हिट ना हो जाऊं। वो उनके पास सही तरीके हैं कि वो वापस ले आएंगे। इमेजिन भैया दीदी जो अपने घर पे बड़े भैया दीदी होते हैं, कि वो उन्होंने लाइफ में वो सब कर रखा होता है, तो वो तुम्हें बता सकते हैं कि देखिए यार, ये सब करेगा ना तो यहाँ फंस जाएगा, मैं तेरे को पहले से ही बचा लेता हूँ, प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ तेरे को, यहाँ ये इसलिए 6 ईयर प्लान में नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है, राइट? सो आई हैंड ओवर टू अरविंद सर। मेक श्योर कि जो भी वो टॉपिक बता रहे हैं आप नोट डाउन कर लो। अगर आपके पास लिंक नहीं है माइक्रो थीम्स की, तो एक बार चैट पे लिख दो, टीम विल शेयर इट विथ यू, सो दैट आप वो सब फ्री में अवेलेबल है। आप सो दैट यू कीप उसका प्रिंट आउट लेके अपनी टेबल पे रख लेना है आप लोग को, ठीक है? इफ यू डोंट हैव माइक्रो थीम का लिंक, जस्ट टेल अस इन द चैट, विल शेयर द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड। I'll just hand it over to Arvind sir. So before we start the academic session, let's confront certain truths. क्योंकि mentorship, जैसा प्रयास सर ने बताया, is about the worst day of your preparation. तो क्या worst हो सकता है वो भी समझने की जरूरत है आज, right? So you should understand one thing, that UPSC is what? An exam of rejection, right? Selection का exam तो है ही नहीं, right? Despite you have all the traits of clearing the exam, मान लेते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आपके पास बहुत ही एक्सीलेंट लेट्स से एकेडमिक रिकॉर्ड है, ठीक है, और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, परसिवरेंस है, और आप डेडिकेशन बहुत अच्छा है, आपका इंटेंशन टू क्लियर द एग्जाम बहुत अच्छा है आपका, बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज ट्रेड्स, इट इज वेरी मच लेट्स से क्लियर ऑल्सो, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि आप हो सकता है कि एग्जाम क्लियर ना कर पाओ उसके बावजूद भी। एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज, डिस्पाइट हैविंग ऑल द ट्रेड्स, कि you lack intelligent execution, right? Intelligent execution आपके पास नहीं है, you don't have the right strategy, और intelligent execution, right execution आपके पास नहीं है, that is why despite having all the traits of good student, you're not able to clear the exam, right? तो let's understand कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम को निकालने का एक प्रोसेस है, और यूपीएससी के भी एग्जाम को निकालने का एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के थ्रू आपको गुजरना है, और देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वहीं कुछ स्टूडेंट थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, राइट? द फर्स्ट स्टूडेंट जो है, जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहा है, इन तीनों स्टेजेस को, इन तीनों जो अलग अलग स्टेज हैं, इनकी अप्रोच जो है वो अलग अलग है, उनको पूरा का पूरा ये 1 साल में, 1.5 साल में सीख जाता है, राइट? बट वहीं जो स्टूडेंट थर्ड अटेम्प्ट में या फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, एक अटेम्प्ट में उससे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में उससे मेंस नहीं क्लियर हुआ, तब जाके उसको मेंस के लाइन स्पॉट पता चले, उसके बाद जाके थर्ड अटेम्प्ट में वो क्लियर कर रहा है। तो क्या जो समझ हमको थर्ड अटेम्प्ट में आ रही है, जो एग्जीक्यूशन का जो राइट तरीका है जो हमको थर्ड अटेम्प्ट में आ रहा है, क्या हम उसको 1 साल के अंदर नहीं समझ सकते, राइट? तो डेफिनेटली हम इसको समझ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट
कि आप प्रोसेस को ढंग से मास्टर करो रेदर देन कि आप सिर्फ और सिर्फ किताब खोल के पढ़ना शुरू करो, राइट? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, राइट? दीज आर द 3 स्टेजेस। और अगर आपने इस स्टेज को मास्टर कर लिया प्रीलिम्स और मेंस को, तब आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी? इंटरव्यू प्रूफ हो जाएगी, राइट? एंड इंटरव्यू प्रूफ प्रिपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम, राइट? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप देखो तो सर्टेन जो चैलेंजेस आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने में, उसको बस ज्यादा नहीं 2 मिनट तो में समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी में सक्सेस बहुत ही रेयर है। इफ यू सी द परसेंटेज इज वेरी रेयर। अगर आप इसकी यूपीएससी में सक्सेस को अदर हाई रिवॉर्डिंग कैरियर के साथ अगर कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू आर ओपनिंग अ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो 10% के आसपास है इंडिया में। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 10% चांसेस है कि सक्सेसफुल हो जाओगे, बट यहाँ पे यूपीएससी में बहुत कम चांस, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप हो, स्टॉक मार्केट भी एक बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग कैरियर है, एंड देयर ऑल्सो द चांस इज 5%, राइट? 5% पीपल मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट में नाम आना, आईएएस बनना छोड़ दो, लिस्ट में नाम आने का सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ये है, राइट? सो वेरी लिमिटेड सक्सेस है। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट चाहिए, ताकि आप अपने इस वाले जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है उसको और कम ना करो, राइट? कमिंग ऑन, अनइक्वल कंपटीशन भी है यहाँ पे। रैंकर जो एग्जाम ऑलरेडी निकाल चुका है, और इस बार जो आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हो, दोनों मिलके 25 से मई को बैठने वाले एग्जाम में, राइट? ऑलरेडी जो आईआरएमएस है या आईआरएस है या आईपीएस है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहा है, इज अगेन गोइंग टू सिट इन द एग्जाम। सो दिस इज अनइक्वल कंपटीशन टू, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से। थर्डली अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे गो थ्रू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है? आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड जस्ट इन 30 seconds. One of my friend who was 2014 के around, he was earning very good, around 1 lakh maybe, right? Around 1 lakh in 2014। आज के 11 साल बाद अभी वो बहुत कमा रहा होता। 2015 he cleared prelims, 2016 again he cleared prelims, और दोनों साल उसने मेंस लिखा जॉब्स के साथ, ठीक है? देन ही डिसाइडेड कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ और फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, और he exhausted all his attempts and currently he is working, ठीक है? एग्जाम से क्लियर नहीं हुआ, करंटली ही इज वर्किंग 35,000 रुपये महीने वो कमा रहा है 11 साल बाद, जो कि 2014 में वो लाख रुपए कमा रहा था, राइट? और सो व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट? जो लोग क्लियर कर लेते हैं दे आर लाइक पूरी लाइमलाइट में है, खुश हैं बहुत, बट द थिंग इज कि इफ यू नॉट क्लियर इट तो क्या होगा? मेंटल हेल्थ इश्यूज। आई नो पीपल हु आर ऑन मेडिकेशंस, people who have cervicals and all back pains and other thing, right? So these are also the one side effect of these preparation. तो ये भी आपको पता करना है, और कम से कम समय में प्रोसेस को मास्टर करके एग्जाम को निकाल के आगे बढ़ना है लाइफ में, राइट? दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और फोर्थ, आप जान जाओ लक डज मैटर। कितना भी आपने हार्ड वर्क किया हो, लक का एक फैक्टर आ जाता है, बट लक जो है वो आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड वर्क करने के बाद ही अनलॉक होता है। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा और बहुत हार्ड वर्किंग है तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो बात की गारंटी है। बट दो इक्वली हार्ड वर्किंग लोग जिन्होंने एक सर्टेन लेवल अचीव किया है, उसमें हो सकता है कि इसने कम हार्ड वर्क किया हो बट इसका सिलेक्शन हो गया, और इसने ज्यादा हार्ड वर्क किया इसका नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लक फैक्टर। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड वर्क करने के बाद ही लक आपका अनलॉक होगा, राइट? सो इतने सारे चैलेंजेस के बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप प्रिपेयर करना चाहते हो एंड यू वांट टू एंड यू हैव डिसाइडेड कि नहीं आपको एग्जाम को क्लियर करना ही है, भले कितना भी लिमिटेड सक्सेस रेट हो, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है? और प्रोसेस को कैसे मास्टर कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ कैसे बना सकते हो, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, यूपीएससी के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू की आज हम बात नहीं करने वाले, डेफिनेटली हमको अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बनाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यानी कि हमको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है और मेंस को मास्टर करना है बहुत ढंग से, ताकि 800 से ऊपर हम नंबर ला पाए मेंस, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आती है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हर एक जो स्टेज है ना, प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज,
हर एक स्टेज को निकालने की एक रिक्वायरमेंट है। प्रीलिम्स को निकालने की अलग रिक्वायरमेंट है, मेंस को निकालने की अलग एक रिक्वायरमेंट है, और इंटरव्यू को पास करने की अलग रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझने की कोशिश करें कि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आते हैं, राइट, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रिकॉल करने की स्किल होनी चाहिए, राइट। इंफॉर्मेशन रिकॉल वैल्यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू दिया हुआ है, सामने ही आंसर आपके पड़ा हुआ है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ सही आंसर को टिक करना है, राइट। तो इंफॉर्मेशन रिकॉल होने की वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना नहीं आएगा ना, तो आते हुए क्वेश्चन, पढ़े हुए टॉपिक गलत करके आ जाओ, राइट। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के लिए अच्छी होनी चाहिए बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए। और तीसरा क्या है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए, राइट। तो ये 3 स्किल्स मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मेंस पे आते हैं। मेंस का कुछ सिलेबस है, मेंस के ये सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ऐसे और ऑप्शनल। ऐसे और ऑप्शनल भी है, बट हम आज जीएस के बारे में बात करने वाले हैं मोस्टली। तो ये जीएस के सब्जेक्ट्स है, राइट। अब मेंस को निकालने के लिए यू हैव टू मास्टर सर्टेन स्किल्स, राइट। मेंस का अप्रोच अलग है, रादर प्रीलिम्स से मेंस का अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है। मेंस में क्या है, आपको एक ब्लैंक शीट दी हुई है और आपको वहां पे आंसर लिखना होगा, राइट। आपको ब्लैंक शीट दी हुई है, आपको वहां पे आंसर लिखना है। अब इसके लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। अब एनालिटिकल स्किल से मेरा क्या मतलब है, क्रिटिकली एग्जामिन करके क्वेश्चन आ गया, तो क्रिटिकली एग्जामिन करके क्वेश्चन अगर आ गया तो एनालिटिकल स्किल नहीं होगी तो क्रिटिकली एग्जामिन वाले क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। पहली बात, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इशू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब इशू बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग तो होनी चाहिए, तभी तो ढंग से इशू को समझ पाओगे, अदरवाइज तो इशू ही नहीं समझ में आएगा कि इशू क्या है, राइट। तीसरा, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में 3 घंटे में एग्जाम होता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में। पेपर छूट जाता है लोगों का, सर पेपर छूट गया। प्रीलिम्स में किसी का पेपर नहीं छूटता है, टिक ही लगाना है लास्ट में। अगर आप तुक्के भी मार सकते हो, और तुक्के मारने नहीं चाहिए, बट ऐसा हो सकता है, बट मेंस में ऐसा कोई चांस नहीं कि आप तुक्के मारो, आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स अगर क्रिस्प नहीं होंगे तो रिवाइज किसको करोगे, रिकॉल किसको करोगे, और लिखोगे क्या? तो मेंस को मास्टर करने के लिए आपको ये 3 स्किल्स सीखनी बहुत जरूरी है। एनालिटिकल स्किल्स, इशू बेस्ड को क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए अच्छी, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके लिए नोट्स मेकिंग होनी चाहिए ढंग से, और आंसर राइटिंग स्किल्स तो डेफिनेटली आनी चाहिए। वो हो गया चौथा, राइट। तो ये 4 चीजें आपको मेंस निकालने के लिए मदद करेंगी। ये 3 चीजें जो हैं आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद करेंगी। तो ये अलग अलग अप्रोच है प्रीलिम्स और मेंस को निकालने की, राइट। ये दोनों तरह की स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैप होते हैं। अगर आप देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब ओवरलैप सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रीलिम्स के तरह से भी पढ़ना पड़ेगा, मेंस के तरह से भी पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन सब्जेक्ट्स पे आपको प्रीलिम्स वाली भी स्किल मास्टर करनी पड़ेगी और मेंस वाली भी स्किल मास्टर करनी पड़ेगी। बट एक्चुअली होता क्या है, जहां प्रॉब्लम आ रही है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ सोर्सेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए स्पेक्ट्रम है हमारे पास, पॉलिटी को प्रिपेयर करने के लिए लक्ष्मीकांत है हमारे पास, राइट। या हमने कोई फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ है जहां पे हम क्लासेस करने जाते हैं और हम वहां से टीचर हमको पढ़ा देता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं ना, व्हाट द मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू इज कि वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को फिनिश करने में लगे हैं, मल्टीपल रिवीजन्स लगने में लगे हैं, बुक्स को खत्म करने में लगे हैं। व्हाट दे आर नॉट डूइंग इज कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद इनको अपना बेस बना के दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न दिस स्किल ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, द स्किल ऑफ क्लियरिंग मेंस। इनको इन किताबों को बेस बना के, ये किताबें मीन्स है आपके लिए, दीज बुक्स आर, दीज फाउंडेशन कोर्स आर मीन्स टू डेवलप व्हाट एंड क्या है, you have to master skill to clear the prelims, you have to master skills to clear the mains, right। but students ने इन बुक्स को, इन फाउंडेशन कोर्स को, इनसे बने हुए नोट्स को ही अपना एंड बना लिया है, and that is why you are stuck in the trap। so what is happening is with your timeline, अगर अभी आप देखोगे कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास ट्रेड्स है पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है,
मतलब यूपीएससी में आप देखो तो जितने लोग भी आई थिंक आप देख आज वेबिनार अटेंड करने आए हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, वही यूपीएससी करने की सोचते भी है, राइट। कोई जो बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं है या जैसे 7th 8th 9th 10th में ही फेल हो रहा है, तो वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नहीं आता। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं पढ़ने में वही आते हैं मोस्टली, राइट। तो डिस्पाइट आपके पास सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने जो ऊपर वाली स्लाइड में बताया, एक वो रीजन, दूसरा आपका टाइमलाइन जो है प्रॉपर आपको पता नहीं है कि अगर मुझे एग्जाम निकालना है 1.5 साल में, सारे प्रोसेस को समझना है, तो मैं कैसे करूंगा ये आपको पता नहीं। तो जनरली व्हाट हैपनिंग इज कि आज मार्च है मान लो, तो मार्च से अगस्त तक 6 महीने में व्हाट पीपल आर डूइंग इज दे आर जस्ट फिनिशिंग देयर बेसिक बुक्स एंड एनसीईआरटीज, ठीक है, बेसिक बुक्स और एनसीईआरटीज को खत्म कर रहे हैं। बेसिक बुक का मतलब मैंने स्टैंडर्ड बुक कहना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त में और नवंबर में व्हाट दे डू इज कि वो अपने ऑप्शनल की तरफ चले जाते हैं, ऑप्शनल करंट अफेयर्स ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। और नवंबर और जनवरी के बीच में अगेन कुछ जो मेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ओवरलैपिंग सब्जेक्ट सिखाए, बट ओवरलैपिंग के बाद भी क्या होता है, कुछ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इथिक्स हो गया यहाँ, ठीक है, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया आपका, ठीक है, या आपका सोशल जस्टिस हो गया या सोसाइटी हो गया। तो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट कुछ कुछ यहाँ पे इन्होंने पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, और ये पूरे जो 11 महीने हैं इनको सिर्फ और सिर्फ बुक्स को, फाउंडेशन कोर्स को, लेक्चर्स को देखने में लगा दिया, राइट। अभी तक उनको ये नहीं समझ में आया कि जो बुक्स, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटीज हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीन्स है, नॉट द एंड। तो यू इफ यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से इवन 1 टाइम्स, या आप बस सिलेबस खत्म करने में लगे हो ना, तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। जनवरी के बाद जब एग्जाम पास में आता है प्रीलिम्स का, तब एक रियलिटी चेक मिलता है, पीपल शिफ्ट देयर प्रिपरेशन टू द प्रीलिम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, पीवाईक्यूज लगाना शुरू करते हैं रैंडमली कुछ कुछ, ठीक है। सम पीपल दे क्लियर द प्रीलिम्स, सो मेंस नहीं निकलता, या बहुत सारे लोग अगेन प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते, तो व्हाट हैपेंस इज अगेन द साइकिल रिपीट्स, राइट। अगेन वो वापस से बैक टू जीरो आ जाते हैं, राइट। तो दिस इज हैपनिंग विथ यू गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट सिलेबस, बुक्स और इसी सब में खप जा रहे हो आप, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डेवलप सर्टेन स्किल्स, दैट इज prelims specific skills to clear the prelims examination and mains specific skills to clear the mains examination, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है in order to clear the exam. And that is what happened जब आपके पास कोई, जैसे आपका कोई बड़ा भाई आईएएस हो, let's say I think you know about Tina Dabi, right? And Tina Dabi's sister was Ria Dabi. Ria Dabi also cleared the exam in the first attempt only, right? Because her sister was guiding her, right? तो आप देखोगे कि जो लोग लेट्स से एग्जाम की नर्व को पकड़ चुके हैं, राइट, दे नो, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन आता है, बहुत तगड़ा इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन आता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट फॉर दिस एग्जाम। और जो लोग को नहीं पता या फर्स्ट जनरेशन है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ बुक, सिलेबस, ठीक है, टॉपिक्स, ऑप्शनल, इसी में घूम के रह जाते हैं वो साल 1.5 साल, तब जाके समझ में आता है कि ओके इससे बाहर भी दुनिया है, राइट। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूंगा और हम दिखाएंगे कि जो स्टूडेंट इस तरीके का आंसर लिखता था, जहां पे इसको जैसे 2.5 नंबर मिल रहे हैं, इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, ही वाज माय स्टूडेंट, ही आल्सो क्लियर्ड मेंस दिस टाइम। तो इफ यू कैन सी वेयर देयर इज नो पर्टिकुलर आर्टिकुलेशन, ठीक है, इतना ढंग का आर्टिकुलेशन भी नहीं है, और ही इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड प्रॉपर्ली। अभी उसके अंदर नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार। और उसको यहां से लेके यहां लाना, राइट, जहां पे वो 5 नंबर पा रहा है अपने आंसर्स में, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकली, मैं इसमें ज्यादा नहीं अंदर जा रहा कॉपी के अंदर, बट आप ओवरऑल देखोगे तो आर्टिकुलेशन यहाँ पे बेटर हो गया है, डायमेंशन, आर्गुमेंट, एग्जाम्पल फॉर्मेट में आ रहा है, बियॉन्ड द डिमांड भी जा रहा है, ये कंटेंट डेंसिटी देख लो आप इसकी कॉपी में, और कॉपी में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही टू द डिमांड के हिसाब से है। बट अगर आप पुरानी कॉपी का ही वर्टिकल व्यू लो, बस वर्टिकल व्यू लो, तो यू विल फाइंड द डिफरेंस कि ओके दिस आंसर लुकिंग मच बेटर देन दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज कि जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है तुम्हारे आंसर में ना, ठीक है, उन पे ढंग से इंप्रूव करा के वी टेक यू टू दैट लेवल, राइट, जहां पे तुम एक अच्छा आंसर लिख पाओ, राइट। अभी मैं इस कॉपी के एकदम इंटरनल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार, ठीक है। तो
लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ यू आर द फर्स्ट जनरेशन इन योर फैमिली और आपके पास आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि आपको गाइड कर पाए, जो ऑलरेडी इस एग्जाम के से गो थ्रू हो चुका हो, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन क्लियर इट विथ इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन, राइट? सो आर यू विथ मी? विथ अभी तक आप इस बात को समझ पाए हो अभी तक? यू कैन जस्ट से येस और नो, ठीक है? जस्ट से येस और नो इफ पॉसिबल, इफ यू अंडरस्टैंड जो अभी तक मैंने बोला, बिकॉज अब मैं पूरा एकेडमिक्स में जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं पूरा एकेडमिक्स में जा रहा हूँ। नाउ यू हैव टू बी वेरी मच, लेट्स से, ठीक है, बहुत ज्यादा तुमको यहाँ पे अब अटेंटिव रहना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो दिस इज द ओवरऑल 1.5 इयर्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड सिलेबस कवरेज प्लान, ठीक है, जिसमें रिवीजन भी है साथ साथ, ठीक है? तुम्हारा कुछ जो तैयारी है 1.5 साल का, वो 4 फेजेस में बंटना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये 4 फेज में होना चाहिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है? आई जूम इन, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो पहले एक ब्रॉड व्यू ले लो, ठीक है? तो फेज 1 जो है वो 7 महीने का है, ठीक है? 7 महीने का है, जिसमें हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल कवर द होल सिलेबस, ठीक है? और हर एक सिलेबस को, मतलब पूरे सिलेबस को, वेदर ये प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो या ऑप्शनल का हो या एसए का हो, सबको हम 7 महीने में करने की कोशिश करेंगे। और आपको लग रहा होगा सुन के कि 7 महीने में सब कैसे होगा, हमें तो 6 महीने जैसे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में लग जाता है। तो दैट इज वाई यू नीड अ मेंटर, राइट? 7 महीने में कैसे हो सकता है, आई विल टेलिंग यू, राइट? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज आप मार्च में हो और सितंबर तक व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिनिश योर होल सिलेबस 1 राउंड। और इसका रेलेवेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स रिलेटेड जो स्किल्स हैं आप स्लोली इनकलकेट करके डेवलप कर पाओ, और सिमिलरली मेंस रिलेटेड स्किल्स आप स्लोली इनकलकेट करके डेवलप कर पाओ, ठीक है? ये कैसे होगा इसके बारे में बात करूंगा, बट फेज 1 क्या है, मार्च से लेके सितंबर तक आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को ढंग से प्रिपेयर 1 राउंड जाके रिवीजन के साथ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ यू वांट टू, लेट्स से इफ यू वांट टू एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट हम आपको दे देंगे, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, राइट? तो देखो व्हाट हैपेंस इज कि जनरली व्हेन वी टेक द पॉलिटी, हम उसको 1-1.5 महीने पढ़ रहे हैं, ठीक है? फाउंडेशन लेक्चर में कितना घंटा लग रहा है, 50-50 घंटे का लेक्चर है, ठीक है? 50-50 लेक्चर्स है, सॉरी। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप देखोगे तो पॉलिटी कैन बी कवर्ड इन 24 डेज, राइट? गवर्नेंस 7 डेज, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री 20 डेज, इथिक्स 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो 10 दिन आपको लगेंगे अपनी हैबिट या एसए से जो रिलेटेड न्यूआंसेस है उसको समझने में, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, राइट? इंटरनल सिक्योरिटी आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। सो एक सब्जेक्ट को कितना टाइम लगना चाहिए वो यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है आपके सामने, ठीक है? एक सब्जेक्ट को कितना टाइम लगना चाहिए और उस टाइम में कैसे कंप्लीट होगा, दैट द मेंटर टेल्स यू, राइट? तो 7 महीने में यू कैन कंप्लीट। नाउ आफ्टर 7 months व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू अराइव एट फेज 2, जहां पे आप जीएस 1, 2, 3, 4, यानी कि अक्टूबर में जीएस 1, नवंबर में जीएस 2, दिसंबर में जीएस 3 और जनवरी में जीएस 4 प्लस एसए, यानी कि मेंस स्पेसिफिक जीएस 1, 2, 3, 4 को ढंग से कर लोगे। मेंस में जो भी चीजें होंगी, मेंस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, उनकी जो माइक्रो थीम्स होगी, आपको 4 महीने का एक टाइम मिलेगा मेंस को करने के लिए। और मैंने कई बार अपने वेबिनार से पहले भी बोला हुआ है कि मेंस के लिए 4 महीना देना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई अगेन ये रिवीजन यहाँ पे जो आपने 7 महीने में यहाँ पढ़ा था, उसको मेंस पर्सपेक्टिव से पक्का करने के लिए, उसमें करंट अफेयर्स जोड़ने के लिए, ठीक है, उसमें एडवांस टेस्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ये 4 महीने बहुत जरूरी है। प्लस आप ऑप्शनल भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट यू हैव, राइट? ठीक है, ऑप्शनल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट यू हैव, ठीक है? तो दैट इज फेज 2, यानी कि यहाँ पे आपकी मेंस रिलेटेड जो स्किल्स है ना, हार्ड स्किल्स required to clear the means, that is analytical skills, your critical thinking skills, answer writing, note making, ये सब यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फेज 3 इज व्हाट, योर प्रीलिम्स मोड आपका ऑन हो जाता है, ठीक है? प्रीलिम्स मोड ऑन कैसे हो जाता है कि आपके पास नाउ यू हैव 4 months, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप उसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। 4 महीने जनरली 110 दिन के आसपास है, 4 महीने भी नहीं है ये टोटल। तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपका पूरा सारा सिलेबस कवर्ड है, ऑल्सो न कि केवल आपने सिर्फ बुक को खत्म किया है एज ए एंड बना के, बट आपने प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड जो भी नेसेसरी माइक्रो थीम्स हैं उन पे भी काम किया हुआ है। तो आपकी प्रीलिम्स को क्लियर करने की स्किल्स भी डेवलप हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, मेंस की स्किल्स भी
क्लियर करने की डेवलप हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में आपने आके अपनी मेंस की स्किल्स को पक्का कर लिया। थर्ड फेज में अगेन आप आके अपनी प्रीलिम्स की स्किल्स को पक्का कर लोगे और प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे मई में, ठीक है, और क्लियर करोगे, ठीक है। और अगेन आपके पास 3 महीने का टाइम होता है मेंस के लिए, तो आपने अपनी मेंस की हार्ड स्किल्स यहाँ पे पक्की कर ली थी। थोड़ा थोड़ा जो भी छूटा होगा आप वहां पे यहाँ पे आके रिवीजन करके एफएलटीज लिख के उसको प्रैक्टिस करके मेंटर्स के साथ डिस्कशन करके उसको बेटर कर सकते हैं, राइट। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज 4 फेज। आपके पूरे 1.5 साल को हमने 4 फेज में डिवाइड किया। पहला तो बेसिक फेज, दूसरा मेंस फेज, ठीक है, तीसरा प्रीलिम्स फेज और चौथा अगेन मेंस फेज जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आता है। मेंस को 2 बार हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेंस के नंबर ही काउंट होते हैं। आपको 800 नंबर से ऊपर लाना है, अल्टीमेटली योर मेंस मार्क्स इज गोइंग टू बी काउंटेड। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे हमने चीजें आपको दे दी, तो ये आप एक बार देख लेना, मैं एक्चुअली आपको सीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा कि आपका डेली और वीकली और डेली प्लान कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सर आपने तो बॉर्डर बता दिया, ठीक है, इतना सब कुछ डाल दिया हमारे पास, 24 में पॉलिटी खत्म कर दो, इकोनॉमी को खत्म कर दो 20-25 दिन में, ठीक है, बट उसको डेली कैसे आप एग्जीक्यूट करें, दैट इज द टास्क, राइट। दैट इज द रियल टास्क कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये गाइज आई शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। पहले आप इस चीज को समझ लो, क्योंकि ना समझना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको ये ऐसे भी दे दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी चीज, ठीक है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द लेट्स से एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। तो आपको ये बात समझ में आई। देन एक ब्रॉडर और ईयरली टाइम टेबल तो हमें मिल गया, मंथ वाइज क्या क्या खत्म करना है ये हमें पता चल गया, बट हमारा डेली और वीकली कैसा दिखना चाहिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम डेली वीकली क्या करने वाले वो बहुत जरूरी है समझना। तो पहली बार आप ये समझ लो कि 8 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए। इससे नीचे कर रहे हो तो कहानी खत्म है, राइट। इससे अगर नीचे कर रहे हो तो कहानी खत्म है। क्यों? क्योंकि ऑल्सो इफ यू आर लेट्स से क्या कहते हैं कि अगर आप वर्किंग एक्सपेरिमेंट हो तो तब उसके लिए हम दूसरी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि वर्किंग एक्सपेरिमेंट के साथ अदर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तब वो मेंटर आपका डिसाइड करता है हाउ डू यू गो फॉर इट, राइट। सो बट इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, ठीक है, बिगिनर, तब आप क्या करोगे, आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़नी है, ठीक है। इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो योर डे शुड बी डिवाइडेड इनटू दीज 5 स्लॉट्स। अगर आप देख पा रहे हो उसको, तो ये 5 स्लॉट्स में आपका दिन डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1 घंटा हमने दिया है करंट अफेयर्स के लिए, 2 घंटे हमने क्या दिए, 2.5 घंटे का 2 स्लॉट हमने दिया हुआ अपने कोर सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए, क्योंकि ऊपर हमने दिखाया आपको ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, जो भी आप पढ़ रहे होगे जिस महीने में, उनको 2 स्लॉट्स में दिया है। एक साथ आप 5 घंटे नहीं बैठ पाओगे, तो 2 2.5 घंटे के स्लॉट्स बैठने के आपको बनाने, ठीक है। 1 घंटा आप क्या करोगे, एमसीक्यूज और माइक्रो थीम, उन जो भी आपने पढ़ा से, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा और पॉलिटी में आपने जुडिशरी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जुडिशरी आप पढ़ रहे हो जैसे, तो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस माइक्रो थीम में, प्रीलिम्स माइक्रो थीम में आए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं उसी दिन, और मेंस में माइक्रो थीम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं उसी दिन, और उसका रेलेवेंस देखना है, ठीक है। और ये जो स्लॉट है ना, ये आपको एग्जाम रेलेवेंट बनाता है। ये जो चौथा नंबर स्लॉट है वो आपको एग्जाम रेलेवेंट बनाता है। ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। और दिस इज व्हाट प्रयास सर वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो टेसिट नॉलेज होता है ना, जो रैंकर्स या जो बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्जाम कर रहे हैं, उनको नेचुरली ये आता है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता। दिस स्लॉट ऑफ योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो अभी तक यहाँ पे 6 घंटे पढ़ा है उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है, मैं उससे प्रीलिम्स कैसे क्लियर करूंगा, मैं उससे मेंस कैसे क्लियर करूंगा, वो समझना ये स्लॉट्स में आएगा। ये 1 घंटा आपको एग्जाम क्लियर करवा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेट्स से स्लॉट, राइट। और 1 घंटा आपको क्या देना है, एक्टिव रिवीजन और रिकॉल में देना है जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, या पिछले दिन पढ़ा था। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली बाय योरसेल्फ कि आप क्या रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है। और लेट्स से क्या जो आज पढ़ा है वो भी आप रिकॉल कर सकते हो एक्टिव रिकॉल में, या रिवाइज कर सकते हो पुराना सब्जेक्ट। तो 1 आवर फॉर रिवीजन हैज टू बी देयर, राइट। सो अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स को हमने कैसे डील किया, लेट्स सी दिस फर्स्ट। तो स्लॉट 1 है हमारा 1 घंटे का करंट अफेयर। इसमें हमको क्या करना है कि अगर आप मंडे से थर्सडे यानी कि जो 4 दिन हैं, आपको क्या पढ़ना है, एसएम वीकली पढ़ना है। एसएम वीकली मतलब हमारी एक वीकली मैगजीन आती है जो कि आई थिंक मार्केट में भी अवेलेबल होगी, समाचार मंथन जिसको बोलते हैं।
समाचार मंथन, यानी कि ये वीकली मैगजीन आती है जो कि अराउंड 30 पेज के आसपास की होती है. दिस इज मोर क्लोज टू द न्यूज़पेपर. दिस इज मोर क्लोज टू द न्यूज़पेपर. क्यों? क्योंकि ये हर वीक आ रही है, तो इसमें आर्टिकल ज्यादा होंगे, न्यूज ज्यादा कवर होगी, और जो भी रेलेवेंट होगा प्रीली और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब दिया होगा. तो 30 पेज के आसपास की आती है बुकलेट. तो आप इसको मंडे टू थर्सडे में पढ़ के खत्म कर सकते हो आराम से. ठीक है. और बर्निंग इशू मैगजीन हमारी आती है, बर्निंग इशू मैगजीन, जो कि मंथली मैगजीन होती है. उसके सर्टेन टॉपिक्स उठा सकते हो. ठीक है. तो ये आपका 4 दिन चलेगा हफ्ते में, और जो लास्ट 2 दिन बचे ना, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें आप पुराने वीक की एसएम मैगजीन पुराने वीक की लो, और बर्निंग इशू भी पुराने मंथ का लो, और उसका क्या करोगे, रिवीजन करके नोट्स बनाओगे 2 दिन में. ये आराम से आपका 4 दिन में खत्म हो जाएगा इस करंट वीक का. और जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे वीक के, उसमें आप क्या करोगे, पुराने वीक के नोट्स बनाओ. राइट. तो ये 6 दिनों में 1-1 घंटे देके दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. और 7वें दिन एसएम का टेस्ट होता है 5 क्वेश्चंस का, और आपको 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट होता है, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी स्किल्स नेसेसरी जो है वो डेवलप होती रहे. राइट. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. तो अगर आप देखोगे तो मैंने कहीं भी स्लॉट में न्यूज़पेपर नहीं डाला है. इफ यू कैन सी दिस, कहीं भी स्लॉट में मैंने न्यूज़पेपर नहीं डाला है. न्यूज़पेपर इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टडी. न्यूज़पेपर शुड बी योर डेली रीडिंग हैबिट. एक बात समझ जाओ, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर को 2 घंटे लेके पोथी जैसा नहीं पढ़ना है कभी भी, और उससे बैठ के नोट्स नहीं बनाना है. यू डोंट हैव टू डू दैट. आई हैव वेस्टेड माय टाइम, मेनी अदर माय फेलो फ्रेंड्स हैव वेस्टेड देयर टाइम. ठीक है. एंड मेनी स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर ने जितने सिलेक्शन नहीं कराया ना, उतने रिजेक्शन करा दिए. दे आर रिटन नॉट फॉर जस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट, बट कोई इकोनॉमिस्ट भी पढ़ रहा है, कोई पॉलिटिशियन भी इसको पढ़ रहा है, जो सिटीजन्स हैं जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. तो इट इज रिटन इन दैट फॉर्मेट. राइट. तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 8 घंटे का ये स्लॉट खत्म करने के बाद आप 40 मिनट का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. ठीक है. यू कैन रीड इट, बट इट शुड बी योर डेली रीडिंग हैबिट्स के लिए आप पढ़ रहे हो, अवेयर रहने के लिए पढ़ रहे हो, नॉट एज ए पार्ट ऑफ एग्जाम. वो आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेगा, बट वो स्टडी स्लॉट में नहीं आएगा. ठीक है. सो स्टडी स्लॉट में आपका एसएम वीकली आएगा. ऑलरेडी हमारी टीम जब इतनी मेहनत कर रही है, डेली हमारे इंटरनल ग्रुप पे मैसेज आते हैं कि कौन से स्लॉट्स को, कौन से आर्टिकल्स को किस सिलेबस के किस थीम्स के साथ रिलेट करके मैगजीन में डालना है, नहीं डालना है, उसका रेलेवेंस. काफी टीम 5-6 लोग लग के, जो कि एग्जाम में बहुत साल से इस एग्जाम के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं. सो व्हेन दे आर वर्किंग, दे आर गेटिंग पेड फॉर दिस. तो व्हाई डोंट यू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि 4 दिन आपको करंट वीक का पढ़ना है, 2 दिन पुराने वीक्स का पढ़ना है. आप एक हफ्ते किसी पुराने वीक का उठा लो, दूसरे हफ्ते दूसरे पुराने वीक का उठा लो. दिस वे आपका रिवीजन हमेशा करंट अफेयर्स का चलता रहेगा. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक. और देन एट द 7th डे, दैट इज द एंड ऑफ द वीक, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसका टेस्ट जाके लिखना है, ताकि आप करंट अफेयर्स का जो भी रेलेवेंस है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओ एटलीस्ट. अदरवाइज इफ यू आर नॉट राइटिंग, जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर लाइक दिस, ठीक है, और उसका कुछ भी आपको इससे रेलेवेंस नहीं पता चल रहा, तो वो आपको एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड. तो करंट अफेयर्स वाला आई थिंक मैंने आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया. दिस इज हाउ यू हैव टू गो. बर्निंग इशू मैगजीन एंड समाचार मंथन मैगजीन्स आर वेल इनफ. 2 दिन आप दोगे तो नोट्स भी बना पाओगे इनके शॉर्ट एंड क्लिप्स, तो दैट विल बी हेल्पफुल. ठीक है. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपना कोर सब्जेक्ट उठाना है. ठीक है. कोर सब्जेक्ट उठाना है, और कोर सब्जेक्ट को 2 स्लॉट में पढ़ना है, 2.5 घंटे के. आप बीच में रेस्ट ले सकते हो. उसके बाद जो भी पढ़ा उसका प्रीलिम्स माइक्रो थीम उठा के देखेंगे कि जुडिशरी पढ़ने जा रहे हैं तो जुडिशरी से कौन कौन से माइक्रो थीम पे क्वेश्चन आया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वो कैसे करेंगे अभी मैं दिखाऊंगा. ठीक है. तो दिस वन पर्टिकुलर आवर ऑफ स्लॉट विल कैन हेल्प यू इन क्लियर द एग्जाम. राइट. इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम. लेट मी टेल यू हाउ. कि अगर आपको दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू टेक, और आप 1 डिग्री से बस इस पाथ से डिविएट कर जाते हो ना, तो बहुत दूर जाके आपको पता चलता है कि इतना डिस्टेंस जो है आपने, इतना आप डाइवर्ज हो गए अपने पाथ से. राइट. बट अगर आप, और दिस इज व्हाट विल हैपन अगर आप इस वाले स्लॉट को अपने स्टडी में इंक्लूड नहीं करोगे. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू. तो आपको 6 महीने 1 साल बाद पता चलेगा कि ओके, आई हैव डाइवर्ज दिस मच फ्रॉम माय पाथ ऑफ let's say clearing the examination. Right. So this particular slot in your study time
will help you to stick to the UPSC's demand for prelims and mains. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है गाइस? यू कैन जस्ट मैसेज मी यस और नो. ठीक है, यू कैन जस्ट से यस. ओके, पृथ्वी को समझ में आ रही है एंड बबलू को, हर्षिता को समझ में आ रहा है. ओके ग्रेट. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि दिस इज हाउ योर ईयरली एंड वीकली, ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली प्लान शुड लुक लाइक. दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. और आप रिगरसली एटलीस्ट जनवरी तक तो इस तरीके से फॉलो चीजों को कर ही रहे. जब आप फेज 3 में आओगे देन दिस सेपरेट थिंग, उसका रिवीजन कैसे प्लान करना है दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट? जो लोग अभी अपने फेज 3 में जा रहे हैं उनके लिए अलग वीडियो बनेगा. बट द थिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मार्च से लेकर जनवरी तक ये 11 महीने आपका ऐसे ही जाने वाला है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने बोला कि हम पॉलिटी को 24 दिन में खत्म करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड और कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने इस 24 दिन वाले लेट्स से पॉलिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं और समझते हैं कि हमारे बुक्स की क्या लिमिटेशंस है. ठीक है, बुक्स की क्या लिमिटेशंस है, लक्ष्मीकांत की क्या लिमिटेशंस है और हमको पढ़ना कैसे एक्चुअली. जो कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि हमने करंट अफेयर तो देख लिया, अब ये बताओ कि कोर सब्जेक्ट को इसके साथ कैसे रिलेट करना है. ये वाले स्लॉट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना. सर कैन आई टॉक टू ए मेंटर टुमारो? तुम पहले ये देख लो. ठीक है, फिर मेंटर से कल बात करा देंगे तुम्हारी पक्की. ठीक है, ओके, तो आ जाओ. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट कि इस वाले स्लॉट को हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, राइट? इस वाले स्लॉट को कैसे हम यूटिलाइज करने वाले हैं. 10 नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो अगर देखोगे तो लक्ष्मीकांत का जो भी लेट्स से चैप्टर है, इफ यू सी लक्ष्मीकांत की जो बुक है, आई थिंक 500-600 पेजेस की से ऊपर की होगी या उसके आसपास की होगी, उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं. हमने क्या किया है कि इन चैप्टर्स को ना स्लॉट वाइज डिवाइड कर दिया है. ठीक है, चैप्टर्स को स्लॉट वाइज डिवाइड कर दिया है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो स्लॉट 1 में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी. ठीक है, ये तीन हमने एक साथ रख दिए क्योंकि ये तीन एक साथ आते हैं, इनका रेलेवेंस एक साथ है. स्लॉट 2 में अगर आप देखोगे तो जो इतने सारे चैप्टर्स हमने डाले हैं तो मेनली हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को एक साथ डाल दिया है. अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट्री कमिटीज है और ये सब एग्जीक्यूटिव्स हैं ऊपर वाले. ठीक है, स्लॉट 3 में हमने क्या किया है कि हमने जुडिशरी को डाल दिया है. इफ यू कैन सी हियर, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम इन कर देता हूँ. ठीक है, इफ यू कैन सी हियर कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये सारी जो चीजें हैं, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म एंड ऑल दीस थिंग्स, ये हमने क्या किया है यहाँ पे डाल दिया हुआ है. स्लॉट 4 में हमने लोकल बॉडीज डाल दिया अगर आप देखोगे तो. ठीक है, स्लॉट 5 में इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हमने वो डाल दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स क्लब कर दिए. ठीक है, स्लॉट 6 जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो यहाँ पे हैं. स्लॉट 7 जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मे बी लेट्स से कि एग्जीक्यूटिव, सॉरी, जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो हो सकता है स्टैच्यूटरी बॉडी हो या हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाए गए हों. ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, और अगर आप देखोगे स्लॉट 8 में हमने क्या दिया कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है कि इंडियन पॉलिटी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम उसका कैसा है, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, इंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, इमरजेंसी प्रोविजंस, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी को हमने स्लॉट 8 में डाला. ठीक है, अगर आप देखोगे स्लॉट 10 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर, जो भी सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सारा एक साथ यहाँ डाल दिया. अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल. ठीक है, और कुछ मिसलेनियस चैप्टर अगर आप देखोगे तो हमने स्लॉट 9 में डाल दिया है कि यूनियन टेरिटरीज और ये सारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, कोलिजन गवर्नमेंट, एडिटिव एक्शन, प्रेशर ग्रुप, ये सारा चीजें हमने स्लॉट 9 में डाल दिया. तो टोटल हमने लक्ष्मीकांत को 10 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. अभी देखो कि स्लॉट 6 और स्लॉट 7 ये दोनों एक दिन में खत्म होने वाली चीजें हैं. मैं बताता हूं कैसे. अगर आप देखोगे तो स्लॉट 6 और स्लॉट 7 दोनों एक दिन में खत्म होने वाली चीजें हैं. दोनों को चाहो तो आप एक दिन में खत्म कर सकते हो या चाहो तो एक एक दिन ले सकते हो दोनों को खत्म करने की. पर अब आप कहोगे सर इसमें तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब 43 टू लेके अगर आप देखोगे 43 से लेके 63 यानी कि 20 चैप्टर्स हैं सर, कैसे आप एक दिन में खत्म करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे इन चैप्टर्स को पढ़ के लक्ष्मीकांत से, तो जो 20 चैप्टर है ना पूरे फैक्चुअल चैप्टर है, पूरे फैक्चुअल चैप्टर है. मतलब आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ से उठानी है. और इसको ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है कि अगर आप देखोगे तो हमने फ्लैश नोट्स में ऑलरेडी इसको टेबल फॉर्मेट में बना दिया हुआ है. अगर आप यहाँ अगर देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी हियर कि
अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, 59 से लेके 69, 10 पेज के अंदर हमने क्या किया है, टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो जो 20 चैप्टर को हमने 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया, राइट, फ्रॉम हियर, राइट। अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, जो सारी चीजों के जितने भी जैसे आर्टिकल्स हैं या जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसको कंपैरिजन के साथ टेबल में डाल दिया, ताकि कंपैरिजन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए वो भी आप कर पाओ, और जो भी इंफॉर्मेशन जो लक्ष्मीकांत में थी इसको कन्वर्ट करके हमने इन पेजेस में डाल दिया, राइट। तो 10 पेजेस यू कैन इजिली रीड इन अ डे, राइट। तो ये जो 20 चैप्टर आपको दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका एक दिन में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ मेंटरशिप इज, कि आपका एफर्ट किस तरीके से मैं कम कर पा रहा हूँ, जो चीज तुम 6 महीने में करते उसको मैं 2 महीने में कैसे करा रहा हूँ तुमको, राइट। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो और इसी तरह अगर आप देखोगे ना तो इफ यू सी कि इसी तरह अगर आप देखोगे तो स्लॉट 5 है, तो यहाँ पे भी स्लॉट 5 है, या स्लॉट 3 जो जुडिशरी से रिलेटेड है। अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे तो जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि यू विल मेनली दे हैव टॉक्ड अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, टेन्योर क्या है, कैसे कितना रहेगा, या इम्पीचमेंट अबाउट जजेस, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जुरिस्डिक्शन कितनी है, ठीक है, वो सारी चीजें बात हुई हैं। सो ऑल द थिंग्स आर फैक्चुअल ओनली, and we have converted all those factual things into what table format, which is very easy to grasp, right? So आप इसका भी यूज करके बहुत कम समय में उस चीज को पूरा ग्रैप्स कर सकते हो, राइट। लेट्स से कि आप स्लॉट 4 पढ़ने वाले हो, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं। पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज आप पढ़ने वाले हो, लेट्स से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो अगर आप देखोगे ना कि यहाँ दिस इज प्रीलिम्स माइक्रो थीम फॉर पॉलिटी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इतनी सारी माइक्रो थीम्स हैं जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो जुडिशरी भी है, ठीक है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, डीपीएसपी हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ ऊपर आके देखोगे तो हियर यू विल फाइंड जैसे अमेंडमेंट्स जो भी है, ठीक है, या इफ यू वांट टू सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे। तो प्रीलिम्स में तो इसका रेलेवेंस है ही, मेंस में भी इसका रेलेवेंस है। अगर आप देखोगे मेंस में, तो मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से पूछे, ठीक है। यानी कि जो मैं टॉपिक यहां से पढ़ने जा रहा हूं, यहां से स्लॉट 4 उठा के मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ने जा रहा हूं, उसका प्रीलिम्स में भी रेलेवेंस मुझे यहाँ पे दिख गया, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, और मुझे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे मेंस में भी दिख गया, ठीक है। तो नाउ टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना कि मैं जा रहा हूँ क्या पढ़ने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। सो when I'm going to read this particular thing, I'll look at the micro theme first कि okay माइक्रो थीम से क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ओके। तो मुझे पता चला कि हाँ माइक्रो थीम से क्वेश्चन आया हुआ है, और पिछले जो भी 2000 से लेके 2024 तक में 7 क्वेश्चन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे आए हुए, ठीक है। 2024 से लेके 2000 से लेके 2024 तक 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मेंस में जो है 8 क्वेश्चन आए हुए। तो दिस टॉपिक हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट, टुडे। अब मैं समझता हूं कि अगर आप देखोगे तो इन टॉपिक्स पे अगर आप लक्ष्मीकांत खोलने की कोशिश करोगे ना, तो लक्ष्मीकांत में आपको क्या मिलने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि लक्ष्मीकांत में अगर आप देखोगे तो पंचायतीज वाला चैप्टर अगर आप खोलने जा रहे हैं, अगर आपके पास बुक हो तो आप वो भी खोल सकते हो, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज अगर आप खोल रहे हो, म्युनिसिपैलिटीज अगर आप खोल रहे हो, तो आपको एक इवोल्यूशन मिलेगा कि पंचायती राज कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। वहां पे आपको फिर जहां पे आपको जो भी कमिटीज के नाम थे वो बताएंगे यहाँ पे कि एलएम सिंह की कमिटी, ठीक है, ऑल दीज कमिटीज विच लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ लेट्स से पंचायतीज। फिर 73rd अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस बताएंगे उसमें कि ग्राम सभा है, फलाना डिमाका, और भी सारी चीजें। देन दे टॉक अबाउट 11th शेड्यूल में कितने फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें मेंशन होगी लक्ष्मीकांत में, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी मेंशन लक्ष्मीकांत में। देन क्या होगा कि क्या रेवेन्यू है, क्या रेवेन्यू है, रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है पंचायत के, उसके बारे में बात हुई है, और क्या बात हुई है, पीसा एक्ट के बारे में बात हुई है। दीज आर द ब्रॉडर थिंग्स जो कि लक्ष्मीकांत में बात हुई है। 1 2 3 4 5 चीजों के बारे में लक्ष्मीकांत में बात हुई,
ठीक है, इसके बाहर और कुछ बात नहीं हुई है लक्ष्मीकांत में। अगर आप म्युनिसिपैलिटीज के लिए देखोगे तो लेट्स से आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की गई हुई है, उसके हिसाब को आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या 12th शेड्यूल में क्या क्या मिलेगा वो बताया गया है, और टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया हुआ है। कैंटोनमेंट हो गया, और लेट्स से जो भी म्युनिसिपल कैंटोनमेंट हो गया या अदर जो भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। तो व्हेन यू विल सी दिस कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो व्हेन यू कंपेयर द बुक तब आपको पता चलेगा कि ओके प्रीलिम्स की माइक्रो थीम अगर जो आई जस्ट ओपन इट फॉर यू, ओके लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। व्हेन यू विल सी कि जो इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स की दी गई हुई, जो भी इंफॉर्मेशन लेट्स से आपके पास अवेलेबल है लक्ष्मीकांत में, उससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। इफ यू विल ओपन तो दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव कम अप, राइट। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस कि मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25। अब ये क्वेश्चन जो है फीचर्स ऑफ द एक्ट पे आया हुआ है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के क्या फीचर्स हैं उस पे आया हुआ है, तो ये लक्ष्मीकांत से आराम से हो जाएगा, राइट। इफ यू विल सी कि ओके अगर मैं ये क्वेश्चन खोल लूं कि अगेन देखोगे क्या है 73rd अमेंडमेंट के फीचर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आराम से लक्ष्मीकांत से हो जाने वाला है। अगेन अगेन देखोगे इफ द पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन लेट्स से जो भी है 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, तो दिस इज ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये भी कहां से आया हुआ है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के फीचर से आया हुआ है, जो कि लक्ष्मीकांत में इजीली अवेलेबल है। बट जब आप मेंस के लिए इस चीज को पढ़ते हो, लेट्स से जब आप मेंस के लिए इस चीज को पढ़ते हो तो मेंस में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मीकांत फेल हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेंस में ये जो क्वेश्चन आए हैं इनकी डिमांड क्या है कि लोकल सेल्फ क्रॉस गवर्नेंस, लोकल सेल्फ क्रॉस वुमेन, लोकल सेल्फ क्रॉस इश्यूज ऑफ फंड फंक्शन फंक्शनरीज। अब इशू ऑफ फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज तो यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत में कहीं दिया ही नहीं है। इफ यू हैव द बुक यू कैन ओपन इट एंड सी इट, लक्ष्मीकांत में कहीं दिया ही हुआ नहीं है। सो नाउ आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत की लिमिटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द सिमिलर टॉपिक माइक्रो थीम में जो आए हुए हैं, लक्ष्मीकांत की लिमिटेशन है। नाउ लक्ष्मीकांत से वो नहीं होने वाला, राइट। यू नीड सम मेंस नोट्स फॉर दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे एक्स फैक्टर नोट्स होंगे, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो, ठीक है। और ड्राइव पे हमने जो भी फ्री मटेरियल है उसमें इसको डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो हियर अगर आप देखो यहाँ पे लक्ष्मीकांत में देयर इज नो वेयर मेंशन कि वुमेन रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं हुई, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन पे बस उसमें इतना दिया हुआ है कि 1/3 रिजर्वेशन दिया हुआ है, बट और कुछ बात नहीं है, उसके इश्यूज वगैरह की कोई बात नहीं हुई है, इफ यू कैन सी हियर। बट वी हैव पुट इट इन एक्स फैक्टर नोट्स, राइट। अगर आप देखोगे तो वुमेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रॉस वुमेन पे क्वेश्चन आया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है। तो द थिंग इज कि जब आप पढ़ रहे हो कोई चीज को, लेट्स से इफ यू कैन कम हियर अगेन, इफ यू कैन कम हियर अगेन कि यहाँ पे आप जब अपने स्लॉट्स में डाल रहे हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने पढ़ा और आप सोच रहे हो कि मैंने लक्ष्मीकांत से खत्म कर लिया, नाउ माय थिंग इज ओवर। जब आप इस स्लॉट पे बैठोगे 1 घंटे एमसीक्यू और राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए माइक्रो थीम पे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओ कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली आई हैव डन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत वाज ओनली एबल टू हेल्प यू कि जिससे बस प्रीलिम्स ही क्लियर हो पाए, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि until unless you're not recognizing micro themes और किसी भी टॉपिक का रेलेवेंस जब आप उसकी माइक्रो थीम के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की वजह से हुई है या मेंस की वजह से भी हुई है। अगर मेंस की तरीके से भी हुई है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इस बुक की लिमिटेशन थी उसको मैं कंप्लीट कहां से करूंगा। और जनरली यही प्रॉब्लम होती है कि जब स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बुक्स को मीन समझ लेते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक को 11 महीने तक खत्म करते जा रहे हैं। यहाँ प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद पता चलता है कि ओके मेंस का तो गेम ही अलग है, मेंस का पूरा गेम ही अलग है। अभी तक उनको पता ही नहीं कि मेंस को कवर कहां से करना है। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, लेट्स से इस तरीके को फॉलो करते हो, तो ये जो 7 महीनों में एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो रिक्वायर्ड लेट्स से सोर्सेस हैं, नॉट जस्ट द बुक लिस्ट बट अदर वैल्यू एडिशन सोर्सेस, उनके बारे में पता होता है और आप यहाँ पे मेंस वाले फेज में आके इस पे काम कर पाते हो ढंग से। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? यू कैन जस्ट मैसेज मी येस और नो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है तब मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। पृथ्वी को समझ में आ रही है, शिरा को समझ में आ रही है, ओके
गाइस, will not take much time of yours, ठीक है? So this is how you have to go about it, right? This is how you have to go about it, ठीक है? तुमको इस तरीके से करना है. प्रशांत, I'll ask you, प्रशांत, तुमको मैं after this particular session, I'll unmute you and I'll take your queries, right? Again, अगर आप देखो, जुडिशरी भी था जो मेंस पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है. जुडिशरी भी जो मेंस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है क्वेश्चन. इफ यू सी दिस थिंग, अगर मैं तुमको यहाँ पे लेके आऊँ, तो जुडिशरी पे अगर मैं आऊँ, तो जुडिशरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? इफ यू कैन से दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये जुडिशरी के माइक्रो थीम का है कि नहीं, लेट मी चेक इट फर्स्ट. लेट मी चेक इट फर्स्ट. ओके, हाँ, जुडिशरी पे मैं गया, मैंने ओपन किया, तो जुडिशरी रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है कि which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court. अब ये जो क्वेश्चन है, jurisdiction of जो सुप्रीम कोर्ट है, appellate jurisdiction जो भी है, या original jurisdiction, उस पे ये लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया हुआ है. You will be able to solve this particular question, right? You will be able to solve this particular question. अगर आप देखो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ चैप्टर है. इस पे भी आप ये क्वेश्चन को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लोगे फ्रॉम रीडिंग लक्ष्मीकांत, ठीक है? बट व्हेन यू विल अप्रोच, ठीक है, बट व्हेन यू विल अप्रोच जुडिशरी फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, यू विल फाइंड कि जुडिशरी से जो क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं ना, जुडिशरी से जो क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, वो कम से कम यहाँ पे आप देखोगे तो 6 माइक्रो थीम्स हैं जिसपे यूपीएससी जुडिशरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, और अलग अलग फ्रेमिंग के साथ. एक तरीके का क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्रॉस जुडिशरी या लेजिस्लेचर क्रॉस जुडिशरी. आप यहाँ देखो, या सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, या केस लॉज पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, या जुडिशरी के अंदर ही जो जुडिशरी के जो इश्यूज हैं, जैसे डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, राइट? इफ यू विल सी दिस, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, या पीआईएल जो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ पीआईएल, राइट? इस पे क्वेश्चन पूछ लिया. तो नाउ यू विल फाइंड कि जो पीआईएल वाला चैप्टर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था ना, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू, लेट्स से, आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आपको मैं दिखाऊं तो लक्ष्मीकांत में यहाँ पीआईएल वाला चैप्टर भी है. इफ यू विल सी दिस, कि अगर आप जुडिशरी वाला टॉपिक कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत में 29 नंबर चैप्टर पीआईएल वाला है, जहाँ पे दे विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल, दे विल टॉक अबाउट कि एडवोकेट्स ऑफ पीआईएल, कौन कौन लोग जो है पीआईएल डाल सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? But they are not going to talk about कि what are the regions because of which the PIL का जो use है वो बढ़ गया, right? If you'll see this particular thing, कि they not going to ask about what are the regions of growth of PIL in India. अगर आप देखोगे what are the regions, legislative और executive का inaction is one of the region because of which PIL इंडिया में grow कर गया. और getting my point? अगर आप देखो तो सुप्रियो चक्रवर्ती केस, अगर आपको पता हो सुप्रियो चक्रवर्ती केस के बारे में, तो पीआईएल फाइल की गई इस केस में कि जो सेम सेक्स मैरिजेस है इनको लीगलाइज कर दिया जाए, ठीक है? अब सेम सेक्स को लीगल करना है कि नहीं करना है, ये जो मैटर है किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है. वो उस पे लॉ बनाएगी, तब जाके वो लीगल हो जाएगा, राइट? बट पीआईएल इज बीइंग filed in Supreme Court. Why? Because of legislative and executive inaction. Legislature और executive इस पे एक्शन नहीं ले रहे. That is why the PIL has been filed, और इस वजह से PIL का ग्रोथ हो रहा है, जैसे in judiciary. तो if you will see this, कि these are the things they are not addressed in what लक्ष्मीकांत. तो जब भी आप जो भी टॉपिक माइक्रो थीम वाइज पढ़ रहे हो ना, तो यू विल गेट ए अंडरस्टैंडिंग कि आपको लक्ष्मीकांत की क्या लिमिटेशन है, प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से क्या रिक्वायरमेंट था जो कि आपको करना चाहिए था. सो दैट इज व्हाई दिस स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस 1 hour ऑफ एनालिसिस रेदर देन अगर आप 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे ज्यादा फायदा आपको यहाँ होगा कि अगर आप इस चीज की एनालिसिस रोज 1 घंटे बैठ के कर रहे हो और उनपे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप एक्सपेक्टर का यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप जुडिशरी के एक्सपेक्टर नोट्स यूज कर सकते हो, राइट? जुडिशरी के एक्सपेक्टर नोट्स यूज कर सकते हो. हियर यू विल गेट लॉट ऑफ जजमेंट्स रिलेटेड टू पीआईएल, राइट? और जो रीसेंट जजमेंट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे. ऑल दीज थिंग्स आर फ्री, यू विल गेट इट, राइट? यू विल गेट इट. तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट? ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ. लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि ये बहुत जरूरी है सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है इसको. आई टेक 5 minutes फॉर दिस. उसके बाद आई विल कम टू
taking after that I'll take your question answer sessions, right? So try to understanding, this is very important. So अगर तुम इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और तुम नहीं भी दे रहे हो तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि 2026 में तुम्हारे से गलती ना हो, राइट? अगर तुम ये देखो कि ज्योग्राफी, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स मेक टू ग्रुप्स फर्स्ट, टू ग्रुप्स, दिस इज G1 एंड G2, राइट? दो ग्रुप बनाता हूं मैं। एक ग्रुप में मैं पॉलिटी डालता हूं, ठीक है, पॉलिटी डालता हूं, इकोनॉमी डालता हूं और हिस्ट्री डालता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री डालता हूं, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में मैं क्या डालता हूं, ज्योग्राफी डालता हूं, प्लस मैं इन्वायरमेंट डाल देता हूं, प्लस मैं साइंस एंड टेक डाल देता हूं, ठीक है। अब इतनी बात ध्यान से समझना, मैंने दो ग्रुप बना दिया, ठीक है। पॉलिटी से देखोगे 16 क्वेश्चन आए 2024 में, इकोनॉमी से 12 क्वेश्चन आए और मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए, यानी कि टोटल 31 क्वेश्चन आए। यानी कि टोटल क्या है, 31 क्वेश्चन इस वाले स्लॉट से आए। इफ आई कैन राइट हियर, तो टोटल 31 क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लॉट हैज कम, ठीक है। नाउ अगेन अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो 19 क्वेश्चन आए, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी देखोगे 14 क्वेश्चन आए, और अगर आप फिर देखोगे साइंस एंड टेक से तो 12 क्वेश्चन आए। तो इफ यू विल काउंट तो यू विल फाइंड टोटल 45 क्वेश्चंस हैव कम, अराउंड 45 क्वेश्चंस हैव कम, ठीक है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर हियर कि पॉलिटी के लिए अपने पास लक्ष्मीकांत सोर्स है, इकोनॉमी के लिए जो भी बेसिक कंसेप्चुअल बुक आप लेते हो वो सोर्स है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सोर्स है, ठीक है। अगर आप इन किताबों को पढ़ते हो तो देयर इज श्योर शॉर्ट चांस कि आप क्वेश्चन कर पाओगे, बेसिक क्वेश्चन अगर आ गए तो। यानी कि जो बंदा इसमें मेहनत करके जा रहा है 31 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन के आसपास, 22 क्वेश्चन के आसपास तो सही करके आएगा, राइट। एंड जो सोर्सेस हैं वो फिक्स्ड है, यहाँ जो सोर्सेस हैं वो फिक्स्ड है और उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट ज्योग्राफी के लिए आप क्या पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या पढ़ते हो, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर बुक। सो शंकर आईएएस है, बहुत ही डेप्थ में है, बट उसको जनरली अब थोड़ी सी वो रिडंडेंट होती जा रही है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज पीएमएफ बुक ले सकते हो, या मेंटर आपको जो आपका बताए दैट वन बुक दैट यू कैन टेक। साइंस एंड टेक के लिए जनरली कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने से कोई गारंटी नहीं है कि आप 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी का सही करके आ ही पाओ। ज्योग्राफी से आपको 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे मे बी, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो भी आप किताब पढ़ रहे हो तो 14 क्वेश्चन आए थे, जरूरी नहीं है कि उसमें स्पीसीज वाले क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए थे वो आपसे हो ही जाए, या रिवर्स वाले क्वेश्चन आपसे हो ही जाए। तो यू विल फाइंड कि जो भी बेसिक बुक, जो रेफरेंस बुक है ना, यहाँ पे उनकी लिमिटेशन है कि वो प्रीलिम्स को भी मदद नहीं कर रहे सॉल्व करने में। मतलब क्या कि 45 में जो बच्चा है वो ढंग से 15-20 क्वेश्चन भी सही नहीं करके आ पा रहा, और टोटल नंबर कितने चाहिए, 45 क्वेश्चन नेट हैज टू बी करेक्ट, ताकि आपका स्कोर 90 आ जाए, तब आप प्रीलिम्स निकाल पाओ। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 20 और 22 टोटल 42 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग और घटा लो आप। दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो ग्रुप 2 में सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, उनके जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले। जबकि ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे, इनके स्टैंडर्ड बुक काम कर जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो जो ग्रुप 2 वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, इनके लिए माइक्रो थीम कम्स टू द रेस्क्यू, राइट। माइक्रो थीम्स कम्स टू द रेस्क्यू। कि अगर आप बुक को एंड ना समझ के उसको मीन समझो और उससे हर एक माइक्रो थीम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, तब आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है एग्जाम को क्लियर करने का, rather than you are just sticking to the books and basic sources that you have, right? So this is very important for you कि you have to recognize subjects जहां पे स्टैंडर्ड बुक्स काम करना बंद कर चुकी हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और माइक्रो थीम वाइज तैयारी करोगे तो ज्यादा बेटर तुम नंबर लेके आ पाओगे। एंड हाउ टू डू दैट, दैट इज अगेन a long discussion which is out of the scope of this webinar, right? So if you think कि आपको अगर हेल्प नहीं मिल पा रही है, and if you want to take a free call with the mentor, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि they wanted a call with the mentor, what you can do is you can अपने इस QR कोड से you can take the screenshot of this QR कोड, और QR कोड का यूज करके you can just write your concerns या अपनी कॉपीज या अपने नोट्स भेज सकते हो, so that जो मेंटर है हमारा आपसे कॉल करने से पहले आपके बारे में थोड़ा जान पाए, राइट। आपके नोट्स देख पाए, आपके जैसे कॉपीज देख पाए, तब जब वो आपसे कॉल पे आए तो उसको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स कुछ पता हो, सो दैट वो आपको कुछ गाइड कर पाए, राइट। सो इफ यू वांट टू फ्री कॉल विद द मेंटर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर QR कोड, राइट।